हाँ, अभी इनवर्स फंक्शन का हम नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल 10 to 12 सम है। देन फॉर सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, if the problem contain under root of 1 minus x square, then you have to substitute the x is equal to sin theta or x is equal to cos theta. If the x under root of 1 plus x square, here second term is 1 plus x square, यहाँ पे 1 plus x square है, तो x is equal to tan theta and or x is equal to cot theta. अगर x square plus 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और हियर एक्स स्क्वायर माइनस 1. If the under root of x square minus 1, then the substitution is x is equal to sec theta और x is equal to cosec theta. यहाँ पे 1 plus x square है और यहाँ पे under root of x square minus 1 है. अगर a plus x upon a minus x है, if this type, then x is equal to a cos of 2 theta or a cos of theta. If the function is of this form, under root of 1 plus x upon 1 minus x, then x is equal to cos of 2 theta or x is equal to cos of theta. If a plus x square, then x square is equal to a cos of 2 theta. If the function contain a 2x upon 1 plus x square, then x is equal to tan theta. 1 minus x square upon 1 plus x square, then x is equal to tan theta. ये ऐसा सब्स्टिट्यूशन क्यों करना है? सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें रिड्यूस होता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, टैन इनवर्स ऑफ टैन, साइन इनवर्स ऑफ साइन, कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, ऐसे हमें कन्वर्जन होता है और वो डेरिवेटिव बहुत इजी हो जाता है. देयरफॉर यू हैव टू रिमेंबर दिस सब्स्टिट्यूशन. अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है. पुट x इज इक्वल टू 1 minus x square upon 1 plus x square, then you have to substitute x is equal to tan theta. x is equal to tan theta. Therefore तो theta is equal to क्या लिख सकते हैं हम? theta is equal to tan inverse of x. theta is equal to tan inverse of x लिख सकते हैं. Then substitute this value. y is equal to cos inverse of 1 minus tan square theta 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. तो 1 minus tan square upon 1 plus tan square, this is the formula for cos 2 theta. ये ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फार्मूला है ये याद होना चाहिए. दिस इज द फार्मूला फॉर cos of 2 theta, cos inverse of cos of 2 theta. The answer is 2 theta. You substitute the value of theta. Theta is equal to tan inverse of x. Substitute the value of theta. Theta is equal to tan inverse of x. Now differentiate with respect to x. Write down differentiate with respect to x. Then dy by dx is equal to 2 upon 1 plus x square. Derivative of tan inverse of x is 1 upon 1 plus x square. So for a such type of the problem, you have to use the suitable substitution and then simplify. You get cos inverse of cos, sin inverse of sin, tan inverse of tan. तो ये 2 theta आता है. Then resubstitute the value of theta and find out the derivative. This is the concept for such type of the problems. The second problem is y is equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x square. Next problem, y is equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x square. तो सब्स्टिट्यूशन क्या करना है यहाँ पे? पुट x is equal to tan theta.
सब्स्टिट्यूशन ऐसे कन्वर्ट करना है कि वो ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला कन्वर्ट होता है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। देन वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू tan inverse of substitute the value 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. This is the formula for tan inverse of tan 2 theta. This is the trigonometric formula. 2 tan theta upon 1 minus tan square theta is a tan of 2 theta. Then tan inverse of tan of 2 theta. The answer is 2 theta. Y is equal to, substitute the value 2 tan inverse of x. 2 tan inverse of x. Then what is the value of theta? Theta is equal to tan inverse of x. Then differentiate with respect to x. पहले सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये सिंगल फंक्शन कन्वर्ट होता है एंड देन टेक द डेरिवेटिव. डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. कंसेप्ट देखना है. फर्स्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. तो एक ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला कन्वर्ट होता है. दिस इज द फार्मूला फॉर tan ऑफ 2 थीटा. तो tan इनवर्स ऑफ tan, द आंसर इज 2 थीटा. Then substitute the value of theta, 2 tan inverse of x. Then differentiate with respect to x. dy by dx is equal to 2 upon 1 plus x square. Then write down the next sum, third sum, sin inverse of 1 minus x square y is equal to sin inverse of 1 minus x square अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ऊपर मैंने अभी बताया, यहाँ पे हमारा पहला प्रॉब्लम हो गया था. सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूशन वही रहेगा, x इज इक्वल टू tan थीटा एंड सब्स्टिट्यूशन करना है. पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x. theta is equal to tan inverse of x. Theta is equal to tan inverse of x. Y is equal to sin inverse of 1 minus tan square theta, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, 1 minus square upon 1 plus tan square. तो ये ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फार्मूला है ये समझ में आना चाहिए. दिस इज द फार्मूला फॉर cos 2 थीटा. ये cos 2 थीटा का फार्मूला है. लेकिन साइन इनवर्स ऑफ cos आ गया, तो मुझे साइन कन्वर्ट करना है. साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. अगर 2 थीटा है तो 2 थीटा लिखना है, थीटा है तो थीटा लिखना है. यहाँ पे 2 थीटा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा. तो साइन इनवर्स ऑफ साइन हो गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन. तो इसका आंसर कितना आ गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. लेकिन दिस इज द वैल्यू ऑफ y. तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x. तो डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लेना है एंड फाइंड आउट द dy बाय dx. डेरिवेटिव लेना है. तो dy बाय dx इज इक्वल टू कितना आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ये सेंटेंस लिखना है हर वक्त जब हम डिफरेंशिएट करते हैं. तो पाई बाई 2 का डेरिवेटिव आएगा 0 टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये फाइनल आंसर है. हाँ, तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे. यहाँ पे साइन ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो सब्स्टिट्यूशन है,
पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। सब्स्टिट्यूशन समझ में आना चाहिए। मैंने साइन थीटा क्यों किया है, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सब्स्टिट्यूशन है वो x इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 साइन थीटा, और यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन ऑफ 2 साइन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन उसका स्क्वायर रूट करना है। क्लियर। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा। तो साइन ऑफ, सॉरी प्रॉब्लम में साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे साइन इनवर्स लिखना है, प्रॉब्लम में साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स ऑफ, ये जो फार्मूला होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। क्लियर। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, द आंसर इज 2 थीटा, then is equal to 2 sin inverse of x. What is the value of theta? Theta is equal to sin inverse of x, 2 sin inverse of x, then differentiate with respect to x। ये सेंटेंस लिखना है हर एक प्रॉब्लम में। 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। तो सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूशन आएगा x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x। हाँ, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा। सब्स्टिट्यूशन किया मैंने, तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन में दिया है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है 3x माइनस 4x क्यूब अगर रहता है तो x इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड 4x क्यूब माइनस 3x है तो कॉस थीटा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू, मैं साइन थीटा लिखता हूँ, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 sin cube theta. This is the formula for cos inverse of cos inverse of sin 3 theta। ये जो फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला फॉर cos इनवर्स ऑफ sin 3 थीटा का है। हाँ, sin 3 थीटा, देन cos इनवर्स ऑफ sin 3 थीटा। तो यहाँ पे कितना होगा, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। क्लियर। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। ले सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू 3, थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है। तो पाई बाई 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो इसका आंसर कितना आएगा, -3 अपॉन
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉन्सेप्ट देखो समझ में आता है क्या? कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब है, तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा या तो साइन थीटा नहीं तो कॉस थीटा। लेकिन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन थीटा। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ये फार्मूले सभी लर्न करने हैं ट्रिग्नोमेट्रीज के। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज अ साइन 3 थीटा, लेकिन कॉस है यहाँ पे, तो साइन का कन्वर्जन कॉस में करना है, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस है, ये कैंसिल हो जाएगा। पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, तो -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में क्या आना चाहिए? 1 माइनस और 1 प्लस। अगर ऐसा आता है तो हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये e रेज टू पावर माइनस एक्स हम कन्वर्ट कर सकते हैं, e रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, नहीं तो फिर ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज टू पावर माइनस एक्स। लेकिन वो थोड़ा प्रॉब्लम में माइनस आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स कन्वर्ट करेंगे। तो कॉस इनवर्स ऑफ e raised to power x minus 1 upon e raised to power x, e raised to power x plus 1 upon e raised to power x। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। cos इनवर्स ऑफ e raised to power 2x minus 1 upon e raised to power 2x plus 1। तो यहाँ पे कैसे होगा? एलसीएम होगा e raised to power 2x minus 1 upon e raised to power x, e raised to power 2x plus 1 upon e raised to x। e raised to x और e raised to x कैंसिल हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिखा है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? यहाँ पे पुट e raised to x इज इक्वल टू tan थीटा करेंगे, e raised to x इज इक्वल टू tan थीटा। लेकिन e raised to 2x है, तो tan स्क्वायर थीटा होगा। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर x, tan इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर x। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। cos इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा अपॉन -1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। लेकिन स्टैंडर्ड जो फार्मूला है वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? cos इनवर्स ऑफ minus into bracket 1 minus tan square theta, take the minus sign common, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos इनवर्स ऑफ माइनस कॉस टू थीटा। लेकिन मुझे ये माइनस कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई माइनस थीटा। फार्मूला है 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा मैं रिवर्स में लिखूंगा, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस थीटा। ये फार्मूला आना चाहिए, माइनस कॉस थीटा। लेकिन ये क्यों किया? कॉस इनवर्स ऑफ अगर कॉस है तो हम 2 थीटा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो मुझे ये माइनस साइन रिमूव करना है। तो ये रिमूव करने के लिए कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई माइनस 2 थीटा। Substitute the value of theta, substitute the value of theta, pi minus 2 tan inverse of e raised to power x। यहाँ पे हमने थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ e raised to power x है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन अगर हम लेते हैं तो वहां पे ये सेंटेंस लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये e रेज टू पावर 2x होगा। यहाँ पे चेन रूल का कंसेप्ट है, फिर से मुझे d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स लिखना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ
ई रेस टू एक्स, चेन रूल का कंसेप्ट है, फिर से ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो फाइनल हम आंसर लिखेंगे -2e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻²x। देखो ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 9 रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस 9 रेस टू पावर एक्स। तो यहाँ पे मुझे फार्मूला क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो x इज इक्वल टू टेन थीटा। अभी हमने ये प्रॉब्लम देखा, पहले एक दो प्रॉब्लम देखे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये 9 रेस टू एक्स कैसे लिख सकते हैं, 3 रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, और ये 3 रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3 रेस टू पावर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 रेस टू पावर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो 9 रेस टू एक्स मैंने कन्वर्ट किया 3 रेस टू एक्स, 3 रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन करना है, पुट 3 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 3 थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ 3 रेस टू एक्स। तो यहाँ पे कितना आएगा देखो, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला कैसे, कौन सा फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला फॉर cos 2 थीटा। कॉस इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले लर्न करने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा, y इज इक्वल टू, लेकिन थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 3 रेस टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन करते समय ये सेंटेंस लिखना है। तो 2 अपॉन 1 प्लस 3 रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, तो मैं 9 रेस टू एक्स लिखूंगा। फिर से 3 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव लेना है, फिर से 3 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 3। तो ये फाइनल आंसर लिख सकते हैं 3 रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 रेस टू पावर एक्स। हाँ, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ये 8 प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। y is equal to sin inverse of 4 raised to x plus 1 by 2 upon 1 plus 2 raised to 4x। 4 raised to 2 raised to 4x। तो ये कैसे करना है देखो, पहले हम ये सिंप्लीफाई करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 4 raised to power x and 4 raised to power 1 by 2 अपॉन 1 प्लस, ये 2 स्क्वायर लिखूंगा मैं, और रेस टू पावर 2x। तो 4 रेस टू पावर 1 by 2, 4 रेस टू पावर 1 by 2 मीन्स 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, 2 इंटू 4 रेस टू पावर x अपॉन 1 प्लस, ये 4 रेस टू पावर x होगा, और मैं ब्रैकेट स्क्वायर लिखूंगा। ये स्टेप देखो समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे 4 रेस टू पावर 1 by 2 का आंसर आएगा 2, और ये 4 रेस टू एक्स, यहाँ पे 2 स्क्वायर मीन्स 4, 4 रेस टू पावर 2x, लेकिन वो कैसे लिखेंगे, 4 रेस टू एक्स मैं एक ब्रैकेट में लिखूंगा और ब्रैकेट स्क्वायर। तो अभी सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा
4 raised to x इज इक्वल टू tan थीटा। 4 raised to x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4x, tan इनवर्स ऑफ 4x। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला है? हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा आएगा। तो y इज इक्वल टू कितना लिखना है? 2 थीटा। तो 2 कितना आएगा यहाँ पे? 2 tan इनवर्स ऑफ 4 raised to x, tan इनवर्स ऑफ 4 raised to x। तो डिफरेंशिएशन लेना है अभी। y इज इक्वल टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 4 raised to power x ब्रैकेट स्क्वायर, 4 raised to power x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 4 raised to x का फिर से डेरिवेटिव लेना है। 4 raised to x का डेरिवेटिव कितना आएगा? a raised to x का डेरिवेटिव, a raised to x इंटू लॉग ऑफ a। तो यहाँ पे 4 raised to x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 4 raised to x का डेरिवेटिव आएगा 4 raised to x इंटू लॉग ऑफ 4। तो ये रीअरेंज कर सकते हैं। टू इंटू 4 raised to x इंटू लॉग ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 raised to 2x, 1 प्लस 4 raised to 2x। तो ये प्रॉब्लम आ सकता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है 5 raised to x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे कितना होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करना है? x रेज टू पावर 5/2 है, x रेज टू पावर 5/2 इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब अपन 1 प्लस एक्स क्यूब, तो ये थोड़ा ये सिंप्लीफाई करेंगे। 10th सम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। साइन इनवर्स ऑफ, तो ये कन्वर्ट कैसे करना है? 1 माइनस एक्स रेज टू पावर मैं 3/2 लिखूंगा और ये ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। तो 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर कितना होगा? एक्स क्यूब। लेकिन ऐसा कन्वर्ट क्यों करना है? क्योंकि ब्रैकेट में मुझे tan स्क्वायर वगैरह आना चाहिए। क्लियर? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एक्स रेज टू पावर 3/2 और ये ब्रैकेट स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन आएगा यहाँ पे। एक्स रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू tan थीटा। एक्स रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर? तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x रेज टू पावर 3/2, tan इनवर्स ऑफ x रेज टू पावर 3/2 साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? देखो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, द आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये है, साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा कैन बी कन्वर्टेड साइन इन टर्म्स ऑफ साइन। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 माइनस 2 थीटा। तो आंसर कितना आ जाएगा?
पाई बाई टू माइनस 2 थीटा y इज इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा देखो, पाई बाई टू माइनस 2 थीटा कितना आएगा, थीटा tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x रेज टू पावर 3/2, x रेज टू पावर 3/2, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना है। पाई बाई टू का डेरिवेटिव आएगा 0, 0 माइनस 2, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन x रेज टू पावर 3/2 उसका स्क्वायर कितना आएगा, एक्स क्यूब लिखूंगा मैं, डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे। फिर से मुझे x रेज टू पावर 3/2 का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। x रेज टू पावर 3/2 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3/2 x रेज टू पावर 1/2। क्लियर, दिस टू एंड दिस टू गेट कैंसल, माइनस 3 x रेज टू पावर 1/2 मीन्स कितना आएगा, रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में कितने लिखेंगे, 1 प्लस एक्स क्यूब। ये देखो समझ में आ रहा है क्या। हाँ, तो अभी इनवर्स फंक्शन का ये जो नेक्स्ट टाइप है ये स्टार्ट करेंगे, ये इम्पोर्टेंट टाइप है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है वो पहले एक्सप्लेन करेंगे। tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, देन यू हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। ये दोनों फार्मूलेज हमें अप्लाई करने हैं। क्लियर, तो tan इनवर्स ऑफ 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर, तो ये 15x स्क्वायर का मुझे स्प्लिट अप करना है x और y में, मींस ऐसे दो हमें वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं x और y। इसका मल्टीप्लिकेशन 15x स्क्वायर है और एडिशन 8x है, तो 8x का स्प्लिट अप करना है, एडिशन ऑफ टू टर्म और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू टर्म। अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो ऊपर न्यूमरेटर माइनस प्लस लिखना है, यहाँ पे प्लस है तो न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो न्यूमरेटर में प्लस आ जाएगा। तो 8x का हम स्प्लिट अप करेंगे 5x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 5x इंटू 3x। तो 5x प्लस ये मीन्स 15x स्क्वायर का हमने स्प्लिट अप किया, 5x प्लस 3x तो 8x हो जाएगा, और 15x स्क्वायर मीन्स 5x इंटू 3x। लेकिन ऐसा स्प्लिट अप क्यों करना है, ऐसा स्प्लिट अप क्यों करना है, हमारे पास फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x y इज इक्वल टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये सेंटेंस लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 प्लस 5x मीन्स 25x स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 5x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25x स्क्वायर। फिर से 5x का डेरिवेटिव लेना है, फिर से 5x का डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ 5x इज 5, 1 अपॉन 1 प्लस 3x का स्क्वायर कितनी है ना, 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर। फिर से 3x का डेरिवेटिव लेना है 3, तो ये सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 5 अपॉन 1 प्लस 25 एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 1 प्लस 25 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस 35x स्क्वायर अपॉन 2x। तो पहले ये रिवर्स करना पड़ेगा, कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो ये जो ब्रैकेट में टर्म है उसका रेसिप्रोकल करना है, तो 2x मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा,
और 35x² डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो कॉट का कन्वर्जन tan में किया। क्यों ऐसा कन्वर्ट करना है? क्योंकि ये जो फार्मूला है इसमें डिनोमिनेटर में 1 है और न्यूमरेटर में एडिशन ऑफ टू टर्म है, तो ये 1 जो है वो डिनोमिनेटर में चाहिए, तो मैंने पहले रेसिप्रोकल किया। तो कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x। तो इसका रेसिप्रोकल करने के बाद ये आंसर आता है। तो स्प्लिट अप करना है 35x² का। 35x² मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए और एडिशन 2x आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में प्लस है तो न्यूमरेटर में माइनस चाहिए। मुझे दो टर्म ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि उसकी जो एडिशन है वो 2x आनी चाहिए और ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो 35x² आना चाहिए। तो 7x माइनस 5x हम स्प्लिट अप कर सकते हैं। 7 माइनस 5 2x होगा और डिनोमिनेटर में 35x² के जगह क्या लिख सकते हैं 7x इंटू 5x। तो मल्टीप्लिकेशन 35x² हो जाएगा। तो वो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई करना है, मैंने जो ऊपर दिया है वो tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस tan इनवर्स ऑफ 5x। तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सेंटेंस लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस x²। तो tan इनवर्स ऑफ 7x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/1 प्लस 7x ब्रैकेट स्क्वायर। तो 7x ब्रैकेट स्क्वायर का कितना आएगा 49x²। फिर से 7x का डेरिवेटिव लेना है 7, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1/1 प्लस 49x²। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो माइनस tan इनवर्स ऑफ 5x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/1 प्लस 5x ब्रैकेट स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 5x। डेरिवेटिव ऑफ 5x इज 5, डायरेक्ट लिखेंगे 5/1 प्लस 25x²। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? देखो आता नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना है। डिनोमिनेटर में 3x है लेकिन न्यूमरेटर में 2√x है। तो 3x का मुझे ऐसा स्प्लिट अप करना है, ऐसे दो टर्म मुझे फाइंड आउट करने हैं, उसका जो एडिशन है वो 2√x आना चाहिए और डिनोमिनेटर में 3x चाहिए। तो ये स्प्लिट अप कैसे करेंगे देखो, tan इनवर्स ऑफ 3√x माइनस √x अपॉन 1 प्लस 3√x इंटू √x। ये कंसेप्ट देखो समझ में आता है क्या? मैंने 2√x का स्प्लिट अप किया 3√x माइनस √x अपॉन 3x का स्प्लिट अप करना है 3√x इंटू √x। तो ये कन्वर्जन कैसे होगा, फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। tan इनवर्स ऑफ पहले 3√x लिखना है माइनस tan इनवर्स ऑफ √x लिखना है। क्लियर? tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। तो ये y इज इक्वल टू है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा 1/1 प्लस 3√x का स्क्वायर लिखना है। 3√x का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9x। फिर से मुझे 3√x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ 3√x इज 3/2√x माइनस 1/1 प्लस √x का स्क्वायर कितना आ जाएगा x। फिर से √x का डेरिवेटिव लेना है, फिर से √x का डेरिवेटिव लेना है 1/2√x। फिर से √x का डेरिवेटिव आएगा। तो ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 1/√x में कॉमन ले सकता हूँ, 1/2√x कॉमन लेना है, 1/2√x। तो ब्रैकेट में कितना आएगा 3/1 प्लस 9x माइनस 1/1 प्लस x। हाँ, तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 2/1 माइनस 3 इंटू 4x। तो ये स्प्लिट अप कैसे होगा 2 स्क्वायर इंटू 2x। 2 स्क्वायर मीन्स 4 हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 4 इंटू 2x अपॉन 1 प्लस 3 इंटू ये 4x मीन्स कितना होगा 2x ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये स्प्लिट अप कैसे करेंगे देखो,
यहाँ पे माइनस साइन है। अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो न्यूमरेटर में प्लस आ जाएगा। तो ये हम कैसे करेंगे, 3 इंटू टू रेज टू एक्स प्लस 2 रेज टू एक्स, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 1 माइनस 3 इंटू टू रेज टू एक्स इंटू टू रेज टू एक्स। तो हर एक प्रॉब्लम में ऐसे सिंप्लीफिकेशन करना है। डिनोमिनेटर में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और न्यूमरेटर में वो दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो न्यूमरेटर में एडिशन हो जाएगा। तो 4 इंटू टू रेज टू एक्स का स्प्लिटअप कैसे करना है, 3 इंटू टू रेज टू एक्स प्लस 2 रेज टू पावर एक्स। ये कंसेप्ट देखो समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे हम करना सिंप्लीफिकेशन करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 3 इंटू टू रेज टू एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 रेज टू एक्स। तो डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो tan इनवर्स ऑफ इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू टू रेज टू एक्स का डेरिवेटिव इंटू ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा। फिर से 3 रेज टू एक्स, 3 इंटू टू रेज टू एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3 इंटू टू रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 2, प्लस मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, फिर से 2 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव लेना है, 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 2, 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 2। तो ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन कैसे आएगा, 3 इंटू टू रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 2, वो न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 9 इंटू टू रेज टू टू एक्स प्लस 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 2 अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा 2 रेज टू टू एक्स। कंसेप्ट देखो ये समझ में आ रहा है क्या। तो ये आगे के प्रॉब्लम ट्राई करना है, ये सेम मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।